My name is Rajeshwari Kalyanam. I am from Hyderabad. వెదర్ ఎంత బాగుందో, ఎంత రొమాంటిక్గా ఉందో. ఇలాంటప్పుడు హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో నేను వెళ్తున్నాను. సిటీ దట్ హెస్ బ్యాగ్ ది యునెస్కో టైటిల్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీ. I get my love for the food from this city of foodies. A foodies paradise where old and new, heritage and modern come together beautifully. The second version is World War II, when Italy was practically captured by Germany. Pizza, pasta, pulao, biryani, halim noodles, nachos, పప్పు పరవాన్నం, కేక్స్ అండ్ సమోసాస్. డిష్ ఏదైనా దానికో చరిత్ర ఉంటుంది. వీటిని డెలిషియస్గా వండే చేతులకి ఒక కథ ఉంటుంది. Come with me to discover the food and the many stories. వాట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎ ట్రూ హైదరాబాదీ? 11 o'clockకి లేచి పొద్దున రేసినారా బాయ్ ఇవాళ అంటారు. ఎప్పుడు వచ్చినవరా అంటే పర్సొచ్ దోసాలోగా ఆకే అంటాడు. నిన్న మొన్న 3 ఏళ్ల క్రితమైనా కూడా మనకి పర్సోనే. 3 పూట్ల బిర్యానీ తిని మళ్ళీ రెండో రోజు బిర్యానీ ఖాకే కిత్తే దినోగైనా జాకే ఖాయంగే. హైదరాబాదీస్కి బిర్యానీ అంటే అంత పిచ్చి. హైదరాబాదీస్ లవ్ దేర్ బిర్యానీ. ఆథెంటిక్ హైదరాబాదీ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే నేను వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే సమాధానం చెప్తాను, ఇంట్లో. ఎస్, హైదరాబాదీ హోమ్లో దొరికినట్టు హైదరాబాదీ ఆథెంటిక్ ఫుడ్ ఇంకెక్కడా దొరకదు. రెస్టారెంట్స్ ట్రై చేస్తున్నాయి ఆథెంటిక్ ఫుడ్ పెట్టడానికి, కానీ ఇంటి మాటే కదండి. ఇంట్లో దొరికేది, హైదరాబాదీ హోమ్స్లో దొరికేది ఆథెంటిక్ ఫుడ్. బిర్యానీ ఒకటే కాదు, కద్దు కా దాల్చా, ఖట్టి దాల్, తలావా, ఘోష్, బగార్ ఖానా. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ డాజ్లింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ డిషెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ హైదరాబాదీ కుజిన్. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లోని తోలి చౌకీకి వచ్చాను. ఇక్కడ నాజ్ అంజుమ్ అని ఒక హోమ్ షెఫ్ ఉన్నారు. షీ మేక్స్ ఆథెంటిక్ హైదరాబాదీ డిషెస్. షీ కేటర్స్, తను పెళ్ళిళ్ళకి ఫంక్షన్స్కి కేటరింగ్ చేస్తుంది, ఆర్డర్ మీద బిర్యానీ చేస్తుంది. అండ్ షీ మేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ హైదరాబాదీ డిషెస్ దట్ ఐ థాట్ కొంచెం చాయ్ తాగి ఐ విల్ నో అ లాట్ మోర్ అబౌట్ హైదరాబాదీ ఫుడ్. హాయ్ నాజ్. हेलो. I came here to have lots of food, बस चाय बहाना है. श्योर, मोस्ट वेलकम. तो आप बिजी थे अभी, तो वेट कर रहे थे आप. मैंने देखा कि आप यू हैव बीन पैकिंग अ लॉट ऑफ टिफिन्स. क्या कर रहे थे आप, किन के लिए बना रहे थे? एक्चुअली मेरे पास टिफिन सर्विसेज भी है, मील्स, लंच एंड डिनर, जो सीनियर सिटीजन्स को जाते हैं यहाँ से. अच्छा, they are basically what do you make for them? They are proper from Hyderabad, but whose daughters and sons are abroad. Nobody here to take care of them for food ना. तो उनको टिपिकल ऑथेंटिक हैदराबादी खाना जाता है. जी. जैसे आज का मेरा मेनू था चिकन कोरमा, बगारा खाना, आलू गोभी एंड राजमा. अच्छा, राजमा वैसे हैदराबादी नहीं? नो, इट्स नॉट एन हैदराबादी डिश, लेकिन एक अंकल की डिमांड थी कि उनको खाना है करके, तो आज उनके लिए बनाई मैंने. अच्छा, तो 1 बजे तक ये काम होगा आपका? मुझे मेरा टिफिन यहाँ से 1:45 को चले जाना चाहिए, बिकॉज 1 to 2 के बीच में सबको लंच मिलना चाहिए. So every afternoon elder citizens కోసం she makes टिफिन्स చేస్తుంటాను. मैंने सुना है आपने ही कहा था कि आप हैदराबादी नहीं हो. No, I am not in Hyderabad. लेकिन हम लोग बोलते हैं हमारे भाषा में कि 6 महीने हैदराबाद में रहेंगे तो हैदराबादी हो गए. आप तो 9 साल से. Yeah, it's been 9 years and now I am a Hyderabadi, you can say. Absolutely. So you came after marriage. Yes. So where are you from? I am from Maharashtra, Aurangabad. जी. अच्छा, औरंगाबाद जी, historic city. तो आप यहाँ पे जब आए पहले तो खाना बनाना तो आप बनाए होंगे, तो क्या लगा आपको यहाँ के? मैं महाराष्ट्र का खाना बनाती थी, यहाँ का इतना नहीं पता था. देन धीरे धीरे सासू माँ बताती गई, मैं सीखती गई. तो आपको क्या मेन डिफरेंस दिखा आपका हैदराबाद? हालांकि दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं. नो, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. यहाँ खट्टा बहुत खाते, हम लोग टोमेटो ज्यादा खाते. यहाँ इमली 1 महीने में 2 किलो या 1 किलो लगती है, वहाँ साल में 1 किलो लगती है. दैट इज द डिफरेंस. Then non-veg, they can't live without that. महाराष्ट्र में संडे टू संडे चलता. अच्छा. डेली नहीं है सर. We prefer lot of veggies. या वेजेस में भी non-veg चाहिए. ఇక్కడ మాకు హైదరాబాద్ ఫుడ్ కి కాంప్రమైజ్ లేదు అంటున్నారు, అదైతే కరెక్ట్. ఆల్సో ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్, ఇట్స్ ఆల్సో హైదరాబాदी कुजिन क्यों यूनिक है, वो रॉयल इन्फ्लुएंस है. या दैट इज नहीं, निजाम्स के पीरियड्स में जो ऑथेंटिक डिशेस थे, नाउ दे आर मीन्स अभी वो छुप जा रहे, उसको मैं निकालना चाह रही हूँ. तो मैं टिफिन्स में भी वही देती हूँ और ज़्यादा करके मेरे ऑर्डर्स में भी वैसे ही जाता है. जो निज़ामी फ्लेवर्स चाहिए, जो मसालास दे यूज टू यूज़. नाउ वी कांट गेट इन रेस्टोरेंट्स ऑल दोज थिंग्स.
तो सासू माँ बताती थी, शी इज़ 90 years old माई सासू माँ, तो शी सॉ निज़ाम्स एंड ऑल, तो उन्होंने मुझे वैसा सिखाया हर चीज़। मैंने क्या सीखा? पहले तो खट्टी दाल सीखी थी मैंने, खट्टी दाल सबसे आसान लेकिन सबसे टेस्टी भी। वन मोर आई सॉ, यहाँ खाना कॉम्बिनेशंस में ही खाते जी, हैं, दे हैव अ कॉम्बोज। जी हमारे पास वैसा नहीं था। जी यहाँ खट्टी दाल बनी तो उसके साथ तला हुआ गोश्त भी होना, या फिर काली मिर्ची का गोश्त भी होना, या फिर चिकन फ्राई तो भी होना। जी सो आई यूज्ड टू थिंक ये क्या कॉम्बिनेशन खाते हैं, पता नहीं, खाना है खा लेना चाहिए ना। सो देखते देखते फिर वो कॉम्बोज अपने आप मेरे इसमें आ गए वो। जी जी। और दालचा, फ्राइडे के दिन यहाँ पर हम खास कद्दू का दालचा वगैरह खाना, फली गोश्त बनता है, दैट इज फली गोश्त इज अगेन अ वेरी यूनिक, ज्यादा लोग नहीं जानते नहीं। जी। तो वो फ्राइडे के दिन का मेरा स्पेशल मेनू ऑफ टिफिन। और बिरयानी भी ज्यादातर लोग कच्ची गोश्त की बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं, यानी तो जो आप दम का बिरयानी बोलते हैं, अखनी की तो दम गोश्त, लगा- अखनी की बिरयानी जो होती है ना, कच्चे गोश्त की होती है वो। जी तो पक्के गोश्त की भी बनाते हैं, मगर प्रॉपर हैदराबादी में अखनी की बिरयानी कच्चे गोश्त की। उसके अलावा भी बहुत सारे बिरयानियां बनती या हैं अगर घर में बनते हैं, तहारी भी बनती है। जी। तारी क्या होती है? तारी मटन की बनती है, लेकिन उसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं या बॉईल करके भी कर सकते हैं। बिरयानी यू कैन बॉईल, अच्छा। दैट इज टोटली रॉ मीट। जी रॉ मीट को मैरिनेट करते हैं, राइस को भी मीन्स बाद में बॉईल करते हैं, पहले नहीं होता है, उसको प्लेस करते हैं मैरिनेशन के ऊपर और फिर दम देते हैं, दैट इज दम बिरयानी। और मैंने खुबोली बिरयानी के बारे में जिक्र खुबोली किया था। चने की दाल से बनती है, उसमें नॉनवेज नहीं होता है कुछ भी। लेकिन वेजिटेरियन है, लेकिन बिल्कुल या टेस्ट, tasty। क्योंकि उसको भी मैरिनेट करते हैं, जी दैट इज ऑल्सो मैरिनेटेड, और फिर उसको भी दम देते हैं। तो वो ज़्यादा करके मुहर्रम में मैं देखती हूँ ज़्यादा बनता है यहाँ पर वो। ये दम के रोट मुझे बहुत पसंद है, मैंने इनको पहले डिस्कवर किया है बेकरी में, फिर उसके बाद दोस्तों ने मोहर्रम के टाइम पे दे यूज्ड टू गिव, और मेरे को लगा कि घर का जो दम का रोट होता है वो बिल्कुल अलग टोटली डिफरेंट होता है। मैंने, और आपका भी बहुत फेमस हुआ है। हाँ, इस बार मेरे काफ़ी रोड्स गए हैं, तो- और ये ऑथेंटिक हैदराबादी रोट है, ये जो घर में हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे ना, वो रेसिपी फॉलो किया मैंने। बेकरी में मिलता है, बट दैट इज यू कैंट से इट्स अ रोट, जी वो थोड़ा बिस्किट टाइप में जाता है। जी इसका टेस्ट अलग रहेगा, उसका अलग रहेगा। ये मैं पूरा घर में बना के उसके बॉल्स बना के देती, बेकरी से दम करके लाते, अच्छा। यू कैंट मेक इट इन ओवन। कोविड के टाइम पे शादियां नहीं हो रहे थे, और मुझे बहुत पसंद है शादी का खाना बाय द वे, तो मैंने सुना आपने शादी का खाना बना के लोगों को भेजना शुरू Yes, किया। yes, हालांकि yes. शादी नहीं है, लेकिन शादी का खाना तो है, तो दैट इज व्हाट हैदराबादीज आर, Yeah. वी वांट आवर खाना। एक्चुअली हैदराबादी वे मिसिंग शादी का खाना, जी जी बिल्कुल। तो लॉकडाउन में वो पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने अपना प्लेटर इन्वेंट किया था, जश्न दावत, जी जिसमें पूरा मतलब बिरयानी थी, मरक था, रेड चिकन, चिकन 65, खुबानी का मीठा, रोटी, नान, दही की चटनी, रायता, एक कंप्लीट एक प्लेटर है, दैट विच कॉस्ट 1500 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्जेस। तो उसमें पूरा जैसा शादी में जो खाना रहता है ना, वो देख के आपको वो फीलिंग ज़रूर आती है। जी एंड आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट, एंड दैट इज़ ओनली फॉर वीकेंड्स फ्रॉम माई साइड, बिकॉज डेली मेरे ऑर्डर्स बहुत रहते हैं। और मैंने देखा है कि आप सब कुछ, अगर 5 लोगों का हो या 50 लोगों के लिए, आप सिर्फ आपके किचन से काम करते हैं। Yeah, from my kitchen, and I do all alone. क्यों ऐसा? I don't means ऐसा नहीं मुझे लोगों। लगता छोटा हो गया किचन। नहीं, एक मुझे बताना है, हाउस वाइफ कैन डू एनीथिंग एट होम। उसके लिए बड़ी जगह जरूरी नहीं है, बड़े मतलब इक्विपमेंट जरूरी नहीं है, ऐसे यू कैन डू एट होम। हंडे में मार्केट्स में सब कुछ अवेलेबल है, बड़े बड़े भगोने अवेलेबल है, हंडीज अवेलेबल है। अगर वो पैशनेट है अबाउट कुकिंग, शी कैन डू एनीथिंग इन द किचन। हाउस वाइफ कमजोर नहीं है कि वो नहीं कर सकती कुछ भी, बस उनको एक किचन दे दो, बस। कुछ भी कर सकते। I told you she is the queen of the kitchen. She can do anything over there. ఒక వంటగది ఉంటే చాలు, ఏమైనా సాధించగలదు అని చూపించడానికి, అలా చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి, ప్లస్ అలానే చేయడం ఇష్టం కాబట్టి నాజ్ అంజుమ్, యూ సా హర్ కిచెన్, ఎవ్రీథింగ్ షీ డస్ ఫ్రమ్ హర్ కిచెన్. 70 మంది, ఒక్కొక్కసారి 100 మందికి యూ మేక్ ఫర్ 100 పీపుల్. Yeah. సో వాట్స్ యువర్ मैक्सिमम लिमिट? 100 तक मैं खुद कर लेती हूँ अकेली। उसके बाद मेरी टीम है शादी की। पहले जो शादी होती थी तो 1000-2000 लोगों के लिए मेरी टीम खुद की है। तो ये सब कब शुरू किया? हालांकि आपने कहा था इट्स बिन अभी 5 years कंप्लीट किए हम लोगों ने। मैं 2016 में मैंने स्टार्ट किया था ये, जस्ट ऐसा। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर, या अभी इधर जॉब करने को नहीं था, कुछ भी खाली बैठती थी, तो जस्ट सेड आई वांट टू डू समथिंग। तो शौक तो था पकाने का। तो ये यहाँ पर मेरे देवर की एक होटल थी, तो वहाँ पर मैंने कुछ डेजर्ट सेंड किए थे बना के, सो उन लोगों को पसंद है। दैट वाज द मंथ ऑफ रमज़ान। जी
तो उनको पसंद आए। तो फिर ये लोगों ने बोले कुछ और भेजो करके, तो बिरयानी स्टार्ट की, हलीम स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे ऐसा लोगों को आई यूटिलाइज माई फेसबुक एज माई एडवर्टाइजिंग मीडिया। अभी मेरा खुद का अपना ग्रुप है, फ्रेंड्स हु लाइक अंजुम्स किचन, जिसमें 3000 पीपल हैं। आपको कुछ अलग मुश्किल नहीं लगा जैसे डीलिंग, फाइनेंशियल डीलिंग हो? यूजुअली वुमेन क्या होता है कि सब कुछ ठीक है। When I started, I just had 85 rupees in my hand. I started with that. I didn't take any help from any, not even from my husband, not even from my मतलब मेरे मम्मी लोगों से भी नहीं लिया। They just laughed at me. What are you doing with 85 rupees? I said just wait, I'll do something. जी। कुछ नहीं तो कुछ तो भी करके दिखाऊंगी मैं। तो पहला मैंने टिफिन स्टार्ट किया था। I had bachelors around me. तो they used to come, भाभी थोड़ा सालन दे दो ना जॉब से आने के बाद। तो आई यूज्ड टू गिव करीज फॉर देम। देन वन डे व्हाट दे सेड, आप हमारा खाना स्टार्ट करो बोले। आई सेड आई डोंट नो हाउ टू डू। नहीं आप करो, हम सपोर्ट करते हैं आपको। तो दे कैलकुलेटेड एवरीथिंग एंड दे टोल्ड मी इतना चार्ज रखो आप इसका। तो मैंने 85 रुपीज़ से अपने वेजिटेबल्स मंगाए, अपना जो स्टार्ट करना है वो किया। देन धीरे धीरे दैट टाइम आई हैड 50 स्टूडेंट्स टिफिन्स के लिए। आई डोंट नो वे दे माइट बी लास्ट बैक 5 years बैक, कहाँ चले गए पता नहीं, बट दे हेल्प मी अलॉट। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अभी तो जहाँ से शुरू किया अब तो आप पूरा हैदराबाद को भेज। या आई रिप्रेजेंटेड हैदराबाद इन बॉम्बे ऑल्सो इन 2019 आइसुजू फेस्टिवल में, वहाँ पर भी हम जीत कर आए। ఇన్ఫాక్ట్ నాజ్ అంజుమ్ హ్యాస్ నాట్ జస్ట్ మేడ్ ఫుడ్ అందరికి కేటరింగ్ చేయడమే కాదు, తన దగ్గరికి నేర్చుకోవడానికి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కమ్, దాని గురించి మనం కనుక్కుందాం. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రియలీ మోన్యూమెంటల్ దట్ culinary students, culinary academic student of America, वहाँ के स्टूडेंट्स को बिरयानी सीखना था। सो दे लर्न फ्रॉम मी। दे एक एक स्पाइसेस का उन्होंने नॉलेज लिया मुझसे, कैसा बनता क्या बनता। तो मैंने उनको 2 टाइप की बिरयानी बताई थी, सूफियानी भी और निज़ामी भी। बोथ दे लव्ड दैट थिंग। और मतलब आई होप दे सेड हैदराबादी इज बेटर। या उन्होंने इतना सारा जब किया ना मलबार क्यूजिन वो सब, तो उसमें उनको हैदराबादी अच्छा दिखा। तो वो लोग अभी अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे तो ये मेरी रेसिपी उनके इसमें रहेंगी। जी बिल्कुल। लेकिन आपका दम का रोट जाता है हर हाँ, जगह पे। अभी कतर गया, मेरा कतर गया था, दोहा कतर अच्छा, लास्ट वीक ही गया मेरा। अच्छा, और क्या क्या जाता है आपका बाहर? पंजरी के लड्डू बहुत जाते हैं मेरे, जो बोलते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है, स्वाद- वेरी न्यूट्रिशियस। yes. पंजेरी इज बेसिकली अ ड्राई फ्रूट लड्डू। Dry fruit laddu. మోస్ట్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆర్ గివెన్ దిస్ లడ్డు. అంటే కడుపుతో ఉంటే చాలా మంచిది అని ఇస్తారు, అలానే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ నాజ్ చేసినవి వెరీ పాపులర్. आई थिंक देयर सम स्पेशलिटी, क्या करते हो आप? उसमें भी मैं मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं उनके लिए डाइट लड्डू भी निकालती हूँ। फिर उसमें कुछ हर्ब्स भी डालती हूँ जो वेट गेन ना हो उससे, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो खाने के बाद वेट गेन होता है। तो जो नहीं चाहते वेट गेन नहीं होना तो उसमें हर्ब्स भी जाते हैं हमारे, और वो भी पूरा प्योर घी में बनता है, नथिंग अदर देन, और ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। Correct. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हम हैदराबादी ऑथेंटिक कुजीन जो है उसको जिंदा रख रहे हैं। Correct. आपके जैसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक टाइम था जब लोग पूछते थे कि हैदराबादी कुजीन कहाँ मिलता है, तो वो कुजीन कहीं नहीं मिलता था। एक बिरयानी मिलता था हर जगह पे, उसके अलावा बहुत मुश्किल होता था लोगों को बताने के लिए कि ये बहुत ही बढ़िया कुजीन है और यहाँ पे बहुत सारे डिशेज हैं। तो आई थिंक थैंक्स टू पीपल लाइक यू, Thank you. वी आर एबल टू टेस्ट, वी आर एबल टू टेल पीपल। थैंक यू सो मच ना। तो ये जो सीजनल, स्पेशली जो रमजान में हलीम सभी को पता हाँ। है खाते हैं, ये मुहर्रम के ये हो गए, रोट हो गए। तो आप ये जो बोल रहे थे अभी आने ईद मिलाद जो आती है, 12 वफात जो बोलते हैं ना, तो उसमें पूरी ज़्यादा जाती है। अच्छा, तो उसमें चोबे की पूरी होती है, दाल की पूरी होती है, पूरन की जो पूरी होती है खीर के साथ। उसमें मेरा भी एक अपना इन्वेंशन है, यानी जो चोबे की पूरी और दाल की पूरी के साथ मैं कच्चे नारियल की पूरी भी देती हूँ। अच्छा, तो वो मेरी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, दैट इज़ वेरी जूसी। सो थैंक यू सो मच। मैं आती रहूंगी, हर Sure, ईद sure. को आऊंगी, इंशाल्लाह। ऑल स्पेशल्स मैं टेस्ट करूंगी, इंशाल्लाह। और आई होप एवरीबडी एल्स डज दैट। सो आई एम होपिंग दैट आपको देख के और बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। और आधे मुझे काफ़ी बाहर से भी फ़ोन आते हैं, जो मतलब जिद्दा में, रियाद में जो हमारे लेडीज़ है हैदराबाद की, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। जी। तो जब बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने को इंस्पायर होकर कर रहा है, जी, सो आई गाइड देम। यू डू, आप हमको स्टेप वाइज, मैं श्योर आप घर बैठ के किसी की, अभी लॉकडाउन में जॉब्स चले गए हस्बैंड्स के, सो आई वांट टू सपोर्ट माय हस्बैंड, माय फैमिली, सो आई सेड यू कैन डू, स्टार्ट इफ यू आर गुड इन कुकिंग, स्टार्ट फ्रॉम होम। नहीं वो बड़े बड़े मेरे लिए वैसा कुछ भी नहीं, आप जस्ट छोटे टिफिन से स्टार्ट करो। नॉर्मल खाना तो तुमको बनाते आता है ना,
तो दाल चावल लो, सब्जी लो, अपनी एडवर्टाइजिंग खुद करो. नो नीड ऑफ एनी मीडिया टू कम एंड प्रमोट यू. वी कैन प्रमोट आवरसेल्फ. फिर मीडिया भागते आ जाएगी आपके पीछे. थैंक यू सो Thank मच. you so much.